Hello students. So today we will discuss second chapter of chemistry, that is called the is matter around us pure. So in this chapter we classify matter on the basis of purity. Okay. So first of all, let's some flashback about the definition of matter. So what matter is exactly? Matter क्या था? अगर हमने मैटर के बारे में जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था, सो वी डिस्कस टू मेजर पॉइंट्स इन द डेफिनेशन ऑफ मैटर. द वन इज इट हैज मास एंड सेकंड वन इज इट ऑक्युपाई स्पेस. ये स्पेस ऑक्युपाई करता है और इसके अंदर कुछ ना कुछ मास होगा. ठीक है, हमने इसको इस वे में कैटेगराइज किया था. नाउ in this chapter we will just discuss about the purity of the matter. See, pure क्या चीज है? Pure basically, यदि मैं purity की बात करूं तो pure basically हम उस चीज को बोलते हैं which made up of only one kind of particles. Means दो substances which made up only one kind of particles. यानी कि उसके अंदर उस particles के अलावा कोई और particle यदि present नहीं है, then we call it pure substance. हम उसको pure substance बोल देंगे. For example, let's take a small example which can be taken from our surrounding, like in a piece of paper just collect some sugar, okay, and in other piece of paper just collect some soil. So according to you, which one is the pure? आपके accordingly pure कौन सी चीज है? See, if we keenly observe the sugar particles, so like in the with the help of say lens, so we just observe all the particles, a crystal we can say of sugar look like same. वो सभी के सभी same दिख रहे होंगे. But what happen in the sugar? Soil. In soil we can see traces of clay. There should be clay. There should be insects. That insects we can say there should be some grass particle also. So can we say that this particular thing contain only one kind of particles like sugar soil? No. But in sugar what is happening? Sugar contain only one kind of particle. Even though we can see with the help of lens, so we will see the shape of each crystal look like same. So due to this reason we can say that sugar is pure and soil is not pure. ठीक है? So for this reason, one more thing I am telling you, for this reason we can't use word impure. हम इसके लिए impure word use नहीं करते हैं. So we will use the word mixture. हम इसके लिए कौन सा word use करेंगे? Mixture means those substances which are not made up of only one kind of particle, we consider it as a mixture. हम उसे mixture consider करते हैं. So we can say that soil is a mixture of clay, maybe the dead insects, maybe the grass particles. But sugar is made up of only one kind of particle. So due to this reason, this will be considered as pure and this will be considered as mixture. So now, in introduction. So here is the flow chart of matter on the basis of purity. We can classify this matter on the basis of purity. So as we have already discussed, we can classify matter on the basis of pure and mixture. So now here are the pure substances and here are the mixture. As we have already discussed the definition of pure substances and mixture, so what are pure substances? As I told you, pure substances are those which are made up of only one kind of particles. जो केवल एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, they are considered to be as pure substances. Okay, so here in this particular portion we also divide pure substances into two categories. One is element and second one is compound. See, elements this particular part can also be divided into three further portions like metal and non-metal and metalloids. मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स के बारे में आप ऑलरेडी अपनी छोटी क्लासेस के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट आर मेटल्स, व्हाट आर नॉन मेटल्स. सी, दीज आर द फिजिकल क्लासिफिकेशन आई एम टेलिंग यू.
ये सिर्फ फिजिकल क्लासिफिकेशन है, केमिकल क्लासिफिकेशन अभी हम नहीं देखते हैं. सो दीज आर जनरल फिजिकल क्लासिफिकेशन. फिजिकल क्लासिफिकेशन मींस जो चीजें हमें देखकर पता लग जाएंगी, ठीक है, जैसे उसका कलर क्या है, उसका टेक्सचर क्या है, ऐसे उसका लाइक दिस. हम इन चीजों के बारे में जब कंसीडर करते हैं तो दीज आर द फिजिकल क्लासिफिकेशन. एंड व्हाट आर कंपाउंड्स? सी, माइंड में कई बार ये प्रॉब्लम जरूर रहता है कि कंपाउंड भी तो दो चीजों से मिलकर बनता है, बट एक्चुअली व्हाट हैपन जब दो चीजों से मिलकर जो चीज बनती है एंड दिस इज इन द फिक्स कंपोजिशन. कंपाउंड इज अ केमिकल कंपोजिशन. केमिकल कंपोजिशन लाइक दिस, say water is formed by H2O, and wherever the water will form, the formation will be always H2O. ये कभी भी H3O या H2 something नहीं हो सकती है. If we are talking about water, then it is always H2O. So the composition of hydrogen and oxygen will be 2:1 always. ये हमेशा क्या रहेगी? 2:1 रहेगी. So due to this reason, the compounds which are chemically combined, ये हमेशा क्या रहती है? फिक्स रहती है. So that's why it is also considered as the same kind of particles. इसको भी हम same kind of particles में ही consider करते हैं. Like कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लीजिए. कार्बन डाइऑक्साइड will be CO2. The combining ratio of carbon and oxygen will always have 1:2. So due to this reason, if in some places the carbon dioxide will be present, so वहां पर अगर प्योर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है तो हम उसको कंपाउंड कंसीडर करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड विल बी कंसीडर्ड द कंपाउंड एंड इट इज अ प्योर सब्सटेंस. व्हाई इट इज प्योर? बिकॉज दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज मेड अप ऑफ अ सिमिलर कंपोजिशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स. जो भी उसके अंदर एलिमेंट्स अटैच्ड हैं उनकी कंपोजिशन हर किसी की क्या रहेगी? सेम रहेगी, सिमिलर रहेगी. ड्यू टू दिस रीजन जब केमिकली कंबाइन है, ठीक है, सो ड्यू टू दिस रीजन यहां पर कंपाउंड्स को भी क्या कंसीडर किया जाता है? प्योर सब्सटेंसेस कंसीडर किया जाता है. कंपाउंड्स के बारे में बात की जाएगी. कंपाउंड्स की हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर. ऑर्गेनिक बेसिकली जो कार्बन के होते हैं एंड इनऑर्गेनिक व्हिच कैन नॉट हैव द कार्बन, जिनके अंदर कार्बन नहीं होता, तो हम इसको इसमें कैटेगराइज कर देते हैं कंपाउंड्स को, ठीक है. सो यहां पर ये सारा का सारा जो मिलकर बनाते हैं ये क्या बनाते हैं? प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है. सो दिस इज द पार्ट ऑफ मैटर लाइक कंपाउंड एंड एलिमेंट व्हिच कंबाइनली फॉर्म द प्योर सब्सटेंसेस. जो कंबाइनली क्या फॉर्म करता है? प्योर सब्सटेंस को फॉर्म करता है. देन व्हाट अबाउट द मिक्सचर्स? सी, मिक्सचर्स भी हम ऑलरेडी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं. मिक्सचर्स के अंदर हमने क्या देखा कि मिक्सचर्स आर mainly categorized which are made up of 2 or more substances, ठीक है. दो से ज्यादा substances को जब हम मिक्स कर देते हैं किसी भी proportion के अंदर, the proportion is not fixed. The main difference, compounds के अंदर proportion fix रहता है, as I told you 2:1 या 1:2, but mixture के अंदर ऐसा नहीं रहेगा. In mixtures you can add 2 or more substances in any proportion, so that mixture it can be in any proportion. So that's why now see, it can be also categorized into two parts. One is homogeneous and second one is heterogeneous. In homogeneous we can say the solution like पानी में नमक डाल दिया. पानी में नमक डालने से can you distinguish water and salt? हम salt और water को distinguish नहीं कर सकते जब उसके अंदर वो completely घुल जाता है. So ऐसे पर्टिकुलर पार्ट को हम सॉल्यूशन बोलते हैं. एंड दिस सॉल्यूशंस आर ऑलवेज होमोजेनियस. सॉल्यूशन हमेशा क्या रहेंगे? होमोजेनियस रहेंगे. सो सॉल्यूशंस के अंदर तक कंपोजिशन जो रहती है थ्रू आउट कंपोजिशन लाइक से दिस इज वाटर एंड वाटर के अंदर जब हमने सोल्ट को ऐड किया, यू कैन नॉट यहां से भी वाटर का सैंपल ले लीजिए, यहां से भी वाटर का सैंपल ले लीजिए, यहां से भी वाटर का सैंपल ले लीजिए, यहां से भी वाटर का सैंपल ले लीजिए. Everywhere you will find a similar composition. आपको क्या मिलेगी यहाँ पे? Similar composition means you can have the same taste. Everywhere you can have the same taste. ठीक है? But now heterogeneous के अंदर सेम नहीं होगा. इसका जनरल एग्जांपल है लाइक इसी वाटर के अंदर सोल्ट ना डाल के यदि हम सोइल डाल दें, ठीक है, सोइल का कंपोजिशन क्या रहेगा? जो हैवी पार्टिकल्स होंगे सोइल के, दे विल सेटल डाउन, वो सेटल डाउन हो जाएंगे. द लाइटर पार्टिकल्स विल फ्लोट ओवर द वाटर, वो पानी के ऊपर फ्लोट करने लगेंगे, ठीक है. कुछ एक पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो उसके बीच में सस्पेंड करते रहेंगे. सो यहां पर तीनों लेवल पर द बॉटम, द मिडल एंड द अपर लेवल,
तीनों लेवल पर आपको सोइल का कंपोजिशन एक जैसा दिखाई नहीं देगा, एंड यू कैन क्लियरली डिस्टिंग्विश दिस इज सोइल एंड दिस इज वाटर. सो ड्यू टू दिस रीजन वी कैन से इट इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर. इसको क्या बोला जाएगा? हेटेरोजेनियस मिक्सचर. सो इट कैन आल्सो कैटेगराइज इन कॉलोइड्स. हम तीनों के बारे में आगे अपने चैप्टर के अंदर स्टडी करने वाले हैं, सॉल्यूशन, कॉलोइड्स एंड सस्पेंशन के बारे में. ठीक है. सो ये सारा का सारा एक्चुअली चैप्टर है जिसके जो इस पर्टिकुलर पोर्शन में हम स्लोली कवर अप करेंगे. That we will also discuss about the elements. What are elements? Then compounds, parts of compounds. Here in this particular section we don't have the organic and inorganic section. It is in the higher section. So आपका compound तक level खत्म हो जाएगा. But in mixture we will discuss it in detail, like solution, colloids, suspension and the difference in between. ठीक है, तीनों के बीच में difference भी आएगा. So यहाँ पर हम हर part को clearly discuss करने वाले हैं. So basically, अगर मैं pure substance के लिए बोलता हूँ which are made up of only one kind of particles, तो what about in mixture? Can they made up of one kind of particles? The answer is no. So what will be the definition of it? Which are made up of only one kind of particle, which are not made up of only one kind of particle. So that will be the definition of mixture. ये किसकी definition हो जाएगी? Mixture की definition हो जाएगी. Understand about mixture? Okay. अब एक छोटा सा मैं डिफरेंस करना चाहूंगा अबाउट द कंपाउंड एंड मिक्सचर. दोनों के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस समझते हैं ताकि और ज्यादा क्लैरिटी आ जाए अबाउट कंपाउंड एंड मिक्सचर. बिकॉज स्टूडेंट्स आर मोर ओवर यहां पर कंपाउंड्स और मिक्सचर के अंदर दे आर कंफ्यूज रहते हैं कि कंपाउंड और मिक्सचर में अंतर नहीं होना चाहिए, बट देयर इज अ डिफरेंस. अभी बताता हूं वो डिफरेंस क्या है. नाउ कंसीडर इट. सी आई एम टॉकिंग अबाउट कंपाउंड फर्स्ट. ठीक है, कंपाउंड के बारे में पहले बात करते हैं. कंपाउंड में क्या होता है? सी लाइक मैंने वाटर को बनाना है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन विल फॉर्म वाटर. ये क्या बना रहे हैं? वाटर बना रहे हैं. इसी तरीके से बनेगा. ठीक है, अगर इसको बैलेंस करेंगे तो हम इसको हाफ कंसीडर कर लेते हैं. ठीक है, H2 plus O will give rise to water. Now see, ये केमिकल फॉर्मेशन है. इट इज ए केमिकल फॉर्मेशन. ठीक है, यहां पर हम देख रहे हैं कि इट इज ए केमिकल फॉर्मेशन. द कॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस केमिकली फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकंड, सी दिस hydrogen is in the gaseous form, this oxygen is also in the gaseous form, but what about the water? Water is at the liquid phase. Water आपको कैसे मिल रहा है? लिक्विड फेज में मिल रहा है. So now the point out is they both these reactant will lose their identity to form the new product. यहां पर आपको एक नया प्रोडक्ट दे रहे हैं. They will lose their identity. ये अपनी आइडेंटिटी लूज कर चुके हैं. Now in water you will never see the traces of hydrogen gas. You will never see the traces of oxygen gas. There is a new formation, new product formation. That's why these are the reactant, which are the reacting elements, compounds we can say, and these are the product. It is called the product. So due to this reason, whenever the hydrogen and oxygen will react, they will always form water, and this water composition is always 2:1. It will be never change. ये change नहीं होगी. Clear है? But what about the mixture? Mixture के अंदर क्या होगा? See, I am adding salt plus water. ठीक है, and it will form salt solution. ये क्या बना रहा है? Salt solution बना रहा है. Say I am adding 2 gram water, 2 gram salt and say 100 ml water. ठीक है, okay, I am getting 100 ml solution. मुझे 100 ml solution मिल गया. Fine. In this solution, you can have the property of salt plus property of water. Means after the formation of the salt solution, after this mixture formation, you will have the property of salt. इसके अंदर आपको salt की property भी मिल रही होगी और इसके अंदर आपको water की property भी मिल रही होगी. Means they will not lose their identity after forming the mixture. Mixture की formation के बावजूद भी ये अपनी identity को lose नहीं करते हैं.
दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस. एंड वन मोर थिंग, आपने 2 ग्राम डाला, नाउ B students will form say 4 gram in 100 ml. It is also dissolved. C, it can add say 5 gram. It is also dissolved. So we can, means there is a no definite composition. There is a no definite composition of salt in water. Okay, आप कितना मर्जी कितना इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं. So इसको हम डिटेल में भी स्टडी करेंगे. दिस इज द इन द जनरल पार्ट, इन द इंट्रोडक्शन पार्ट आई एम टेलिंग यू. कंपाउंड और मिक्सचर के अंदर ये छोटा सा डिफरेंस होता है. In compounds, it is a chemical combination, and due to this chemical combination, the reactant will lose their identity to form the new product. But what happens in the mixture? The react means the dissolving. इसको हम बोलते हैं solute plus solvent. They will never lose their identity. वो अपने identity को कभी भी lose नहीं करते. In the mixture, they will retain their identity. आप इसको यहाँ पर भी महसूस कर सकते हैं. Like property of salt will be there and property of water will be there as they are in the mixture. Like अगर हम इसके अंदर sugar को भी ऐड करना चाहें किसी भी amount के अंदर, so we have the sugar, we have the salt and we have the water. All the property in this solution we are having. Fine. So this is the major difference between mixture and compound. So we are going to study about all these things in the chapter. Fine. Thank you. So we through with the introduction part of this chapter. हम जितना भी portion इस chapter के अंदर cover up करने वाले हैं वो सबका सब मोस्टली हम इसके अंदर कवर अप कर चुके हैं कि यहाँ पर हम ये सब चीजें डिस्कस करने वाले हैं. एंड नाउ एक छोटा सा पोर्शन है जो एक डिस्कस करना चाह रहा हूं मैं आपके साथ. दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. एंड देयर आर 5 terms associated with metals which use frequently with metals. You know, when we are talking about the physical property of metals, these terms has we are using again and again. इस टर्म्स को हम बार बार यूज करते हैं. से दिस टर्म्स आर फॉर आई एम टॉकिंग अबाउट मेटल. बट नाउ इवन दो इट इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर मेटल बट नॉन मेटल एज वेल. नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग. सो फर्स्ट वन इज मेटल आर मेलेबल. मेटल जो होते हैं वो मेलेबल होते हैं. मेलेबल मींस दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट्स. वो शीट्स के अंदर कन्वर्ट किए जा सकते हैं. फाइन. सेकंड, लाइक हमारे घरों के अंदर कितने ऐसी चीजें हैं जो मेटल की बनी होती है और शीट से बनी होती है, मेटालिक शीट से मिलकर बनी होती है. ठीक है. सो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट्स. सेकंड है डक्टाइल. मेटल हैव द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी. डक्टाइल, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू दी वायर्स. ये वायर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं. लाइक जो हमारे घरों पे बिजली की सप्लाई आ रही है वो उसके अंदर जो वायर्स यूज हो रही है वो वायर्स मेटल्स की तो होती हैं. थर्ड वन इज दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक सोनोरस. ठीक है. दिस प्रॉपर्टी मींस टेकन फ्रॉम द वर्ड साउंड. ठीक है. जब एक मेटल दूसरे मेटल के साथ स्ट्राइक होता है इट ऑलवेज प्रोड्यूस साउंड. वो साउंड प्रोड्यूस करता है. ठीक है. लाइक फोर्थ प्रॉपर्टी इज वी हैव लस्ट्रस. इट इज टेकन फ्रॉम द शाइनिंग. मेटल ऑलवेज हैव द शाइनिंग सरफेस. मेटल का जो सरफेस होगा वो शाइनिंग होगा. एंड द लास्ट वन इज ब्रिटलनेस. ठीक है. मेटल डज नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ ब्रिटलनेस. डज नॉट शो. ये ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं. व्हाट इज ब्रिटलनेस? ब्रिटलनेस एक्चुअली होता क्या है? ब्रेक डाउन इनटू द पीसेस. ब्रिटलनेस, लाइक अगर मेरे पास कोई कोयले का पीस है और उसको मैं हैमर से हिट करूंगा, देन what will happen? That piece break down into the small pieces. वो छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा. बट यूजुअली मेटल के साथ ऐसा नहीं होता है. मेटल के अंदर डेंट पड़ जाते हैं. ठीक है. सो हम कभी भी ये नहीं कहते कि मेटल जो है वो ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी शो करते हैं. तो ये
5 प्रॉपर्टीज हैं, 5 डिफरेंट नेम्स हैं जो बाय नेम ही जानी जाती हैं विच इज एसोसिएटेड विद मेटल। सो ध्यान रखनी है, मेजर तो ये 4 हैं, 5वीं प्रॉपर्टी एक्चुअली एसोसिएटेड है विद नॉन मेटल्स जो ये शो नहीं करता है, मैलेबिलिटी। सी, अब 5 डिफरेंस हमने ऑलरेडी कर लिए हैं, कैसे? मेटल शो द प्रॉपर्टी ऑफ मैलेबिलिटी बट नॉन मेटल डज नॉट। Metal show the property of ductility, but non-metal does not. Metal show the property of sonorous, but non-metal does not. Metal show the property of lustrous, but non-metal does not. And what about the brittleness? Metal does not show the property of brittleness, but some of the non-metal shows, like carbon. ठीक है, वो show करते हैं। क्लियर हुई बात? सो 5 की 5 एक छठी प्रॉपर्टी भी अगर हम सोचना चाहें, 6th प्रॉपर्टी दैट इज द कंडक्टिविटी। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बट नॉन मेटल आर नॉट गुड कंडक्टर, बट कंडक्टिविटी इज समथिंग एल्स, बट नाउ दीस 5 टर्म्स आर इंपॉर्टेंट। सो आपके लिए छोटी सी एक वर्कशीट दे रहा हूं, लाइक यू हैव टू प्रिपेयर अ वर्कशीट असाइनमेंट to make the difference between the metal and non-metals. Fine, आपको मेटल और नॉन मेटल के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट करना है A4 साइज शीट पर और मुझे सेंड करना है। क्लियर है? थैंक यू।